So if there is a point, first quadrant matlab both positive x coordinate and y coordinate, second quadrant mane negative positive, third quadrant negative negative, and fourth quadrant is positive and negative. There is something called polar coordinate. In polar coordinate, the coordinate looks like this, r comma theta. What is r? R is distance of a point P from origin. As you can see, r is distance from origin, and theta is the angle which makes with x-axis. So in terms of r theta also we can find a coordinate of any point, and that is called polar coordinate. So in this figure you can see pxy, and p is also r theta. This is called Cartesian form, and r theta is called polar form. So what is the relation between them? The relation between them, we already have this idea that x is equal to r cos theta and y equal to r sin theta. We know that thing. So this equation is used to convert. इसको हम यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए. x के जगह r cos theta लिख दो तो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा. पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये r थीटा में चेंज हो जाएगा. y को y इक्वल टू r sin थीटा इफ यू यूज, तो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो if I give you, if r is given and theta is given and you want x and y, तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करना होगा. x इक्वल्स टू r cos थीटा से आपको मिल जाएगा, and if you need y, y इक्वल टू r sin थीटा से y मिल जाएगा. So if r and theta is given to you and you want x and y, then you can use this formula. Oh, उल्टा हो गया. If x is given to you and y is given to you और r चाहिए, then you can use this formula, which is very clear from Pythagoras theorem. From Pythagoras theorem I can say that r is hypotenuse, so r is equal to root over of x square plus y square. This is the simple derivation. R is distance of a point P from origin. And regarding theta, we know that tan theta is equal to perpendicular y by base x. So theta is equal to tan inverse y by x. This theta equal to tan inverse y by x is specially true for first quadrant only. True for first quadrant only. So the question is, what happens if theta lies in second quadrant? Okay. If theta lies in second quadrant, so it will be like this. Point will be like this. This is second quadrant. ये r हो गया, and this is theta. In that case, you can write down second quadrant में अगर theta है, then the angle is actually pi minus tan inverse y by x. This is a fast class, तो इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताएंगे only. I am telling you a rule which will help you in trigonometry also. अगर alpha first quadrant में है, if alpha is an angle in first quadrant, तो second quadrant pi minus alpha type होता है. 180 minus alpha is like a second quadrant. Pi plus alpha किस टाइप का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट टाइप का एंगल. And 2 pi minus alpha is which type of angle? Fourth quadrant type of angle. तो based on this actually ये आया है. Based on this logic this has come. इस चीज को हम माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं. इस चीज को हम, ये प्लस अल्फा है, सो और कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट. एनीवे, तो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न आपका आंसर क्या होगा? अल्फा को हमने लिया है tan इनवर्स y by x. एक्चुअली tan इनवर्स y by x, यू कैन सी अल्फा इज tan इनवर्स y by x टाइप लिया है मैंने. सो इफ योर
पॉइंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पता कैसे चलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट? ऐसा कुछ दिया रहेगा -1 टाइप का अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो यू कैन सी एंड टेल दैट यस इट इज अ सेकेंड क्वाड्रेंट, तो देख के ही पता चल जाएगा। बाय एनी नेगेटिव पॉजिटिव टाइप मतलब ही हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सो इन दैट केस यू हैव एक्स का वैल्यू, यू हैव वाई का वैल्यू, आर मिल जाएगा √(x²+y² से। थीटा इज ट्रिकी वन, थीटा के लिए आप सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करो और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यू यूज दिस फॉर्मूला पाई प्लस अल्फा, मतलब और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, और ओनली दोनों में से कोई भी एक चलेगा। दिस नॉलेज विल बी यूज्ड इन, ये जो मैंने नॉलेज दिया है ये वाला नॉलेज, ये नॉलेज विल बी यूज्ड इन 2D ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इनवर्स फंक्शन क्लास 12 चैप्टर में, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 में। 3 जगह में ये चीज का यूज होता है, और एक जगह यूज होता है, आई फॉरगॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 11 में ही है। ये चार, दीज आर द 4 प्लेसेस जहां पर ये वाला नॉलेज यूज होता है। तो ये नॉलेज बेसिकली क्या है कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा है तो उसका इक्विवेलेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, और एक इसका आंसर है माइनस पाई माइनस अल्फा। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देयर आर 2 वैल्यूज, पाई प्लस अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई प्लस अल्फा होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है माइनस पाई माइनस अल्फा। तो ये आपको मेमोराइज करना होगा, इसको अच्छी तरह से लर्न करना होगा एक्चुअली। सो ये हम फिर से लिख के दे रहे हैं, और ये है मेन फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रखना होगा दिस पार्ट। सो क्विक रिकैप क्या है, थीटा इक्वल टू अल्फा अगर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, और थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, दो वैल्यू बोथ आर इक्विवेलेंट, और थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस अल्फा एनी वन। ये स्ट्रक्चर को याद रखना है, रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना, it will be used in many chapter। then तो if alpha equal to tan inverse y by x, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर ये हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एल्फा, मतलब टेन इनवर्स वाई बाई एक्स या माइनस, ये चीज को याद रखना है, विच विल हेल्प यू इन 2D ज्योमेट्री का पोलर फॉर्म। तो दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो ये ट्रिकी है। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा, इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन एनी सच क्वेश्चन। और खास तौर से हम इसके लिए इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बिकॉज इट इज यूज्ड इन 3 other chapters also। 3 other chapters also, इसलिए ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल, आर थीटा दिया है, कन्वर्ट करना है कार्टेशियन, कार्टेशियन माने एक्स वाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो कोई बात नहीं, वी हैव दिस टू ऑल द फॉर्मूलाज रेडी। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? फ्रॉम हियर आई कैन से x बाई आर इज इक्वल टू cos थीटा, x बाई आर इज इक्वल टू cos थीटा। तो इसको ही हम पुट करेंगे, तो cos थीटा की जगह x बाई आर हो गया, r को यहाँ ट्रांसफर करो, सो यू विल गेट r स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, r स्क्वायर इक्वल टू 2ax एंड r का वैल्यू यहाँ पर, r का वैल्यू r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आई कैन पुट हियर। तो ये आंसर आ गया, सिंपल। तो दिस इज आंसर, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, मतलब एक्स वाई फॉर्म। तो इसका रूल क्या है? जहां भी cos थीटा हो वहां x बाई आर लिख लो, कहीं sin थीटा है तो y बाई आर लिख लो और कन्वर्ट कर लो, सिंपल। सो cos थीटा इज x बाई आर, आर स्क्वायर को हमने लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर आ गया। नेक्स्ट, कार्टेशियन फॉर्म है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आर थीटा फॉर्म में। तो व्हाट वी विल यूज, x के जगह आर cos थीटा यूज करेंगे, y के जगह आर sin थीटा। तो यहां पर x है और यहां पर y है, तो वी विल पुट, तो x के जगह r cos थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, y के जगह r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। सो फ्रॉम हियर डिवाइड बाय r स्क्वायर, आंसर, सिंपल। So all you have to do is put x equal to, use this, बस, और अपने आप आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सॉल्व करने से पहले लेट्स क्विकली रिकैप। पोलर कोऑर्डिनेट, यहां से x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा, r इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा का फॉर्मूला tan थीटा से आया है। इट इज ट्रू फॉर फर्स्ट ओनली, फॉर अदर्स आई हैव रिटन हियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर दिस और दिस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर विल बी दिस और दिस। ट्रांसफॉर्म में cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं x बाई आर फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड आर स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कार्टेशियन टू पोलर, जहां भी x है r cos थीटा, जहां भी y है r sin थीटा, immediately I got my answer. Distance between 2 point easy है, if there is one point P and there is another point Q, then PQ is the distance between them, और इसका distance formula ये होता है, and this formula can be written also like this, किसी भी तरह से लिख सकते हो, x1 minus x2 whole square, क्योंकि स्क्वायर है, y1 minus y2 whole square, you can write in any way. So basically I can say difference of x coordinate, difference of y coordinate, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। So if one point is origin and another point is x1 y1, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होगा? रूट ओवर ऑफ x1 minus 0 whole square, मतलब ये आंसर। So distance of a point B from origin, डायरेक्ट x1 square plus y1 square का रूट। ये छोटा सा डेरिवेशन, एक्चुअली फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, ये है डेरिवेशन, स्मॉल छोटा सा डेरिवेशन है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको प्रूफ कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, और इस तरह से आंसर आ जाएगा। पूरा यहां से लेकर यहां तक है x2, बिकॉज x2 इज द कोऑर्डिनेट, p का कोऑर्डिनेट x1 है, तो इतना दूर x1 है, सो x2 माइनस x1 हो जाएगा ये पार्ट,
दिस पार्ट विल बी x2 minus x1. इस तरह से डिराइव हुआ है. So this part will be x2 minus x1 and this part will be y2 minus y1, this part, और इतना पार्ट होगा x2 minus x1. फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से इस तरह से डिराइव होता है. जस्ट अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ. क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला. यहां पर ट्रिगोनोमेट्री भी विल बी यूज्ड, ट्रिगो विल बी यूज्ड. तो नंबर वन विच यू विल नीड इज, मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं जो यहां जरूरत पड़ेगा. 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. This formula will be used here. तो चलो देखते हैं. This is the formula. So we can say that कि this is x1 y1, x2 y2 हो गया ये, and this is x1 y1. So by putting I get this. a square कॉमन लेंगे तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड फॉर्मूला cos we can use a minus b whole square फॉर्मूला. तो a minus b whole square फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो क्या होता है. We know that cos square plus cos square minus 2 cos cos. फिर sin अल्फा माइनस sin बीटा, sin square अल्फा sin square बीटा minus 2 sin अल्फा sin बीटा. This will come. फिर उसको रीअरेंज करेंगे. cos square अल्फा cos square अल्फा, cos square बीटा cos square बीटा, 2 cos अल्फा minus 2 cos c, ये देखो minus 2 cos अल्फा cos बीटा. sin square अल्फा, ये देखो sin square अल्फा रीअरेंज करके रख दिया. sin square बीटा, ये sin square बीटा, minus 2 sin अल्फा sin बीटा, माइनस कॉमन है, माइनस इज अ कॉमन टू माइनस 2, तो रीअरेंज करके ये मिला. थर्ड फॉर्मूला यूज होगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1. So this will be equal to 1 and this will be equal to 1. तो यहां से क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 cos cos प्लस साइन साइन. तो 1 प्लस 1 माने 2, 2 माइनस 2 cos a माइनस b टाइप फॉर्मूला. तो वही चीज यहां पर अल्फा माइनस बीटा की तरह लिखा हुआ है. सो वी हैव यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने कॉमन लिया, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया एंड देन रीअरेंज करने के बाद इतना आया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1. दो बार उसको यूज करेंगे, 1 प्लस 1 और ये हो गया cos अल्फा माइनस बीटा. ठीक है भाई. नेक्स्ट, फ्रॉम हियर आई विल टेक 2 कॉमन. तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सब मल्टीपल एंगल चैप्टर में. तो ये हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2. फोर साइन स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2. So this is answer. Why mod? मॉडुलस क्यों है? मॉडुलस इसलिए है बिकॉज देर इज अ फॉर्मूला, लूज फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर
is mod x. So इसलिए रूट ओवर ऑफ दिस इज लाइक रूट एक्स स्क्वायर टाइप, तो इसलिए यहां पर मॉड साइन दे दिया गया है। तो स्ट्रिक्टली मॉड साइन नहीं दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन। ऑप्शन में मॉड नहीं है तो आप मॉड नहीं दोगे, ऑप्शन में मॉड होगा तो मॉड, अदरवाइज दोनों ठीक है। strict you can write without mod also, no problem. So many formula has been used here, ये हम बताना चाह रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारा फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद हमने a माइनस बी होल स्क्वायर तो यूज किया ही है, उसके बाद यहाँ पर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज किया, फिर उसके बाद मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज किया हमने 3 फॉर्मूला, और चौथा मॉड वाला फॉर्मूला यूज किया इस सिंगल क्वेश्चन में। तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो प्रीवियस चैप्टर्स का है, ट्रिग्नोमेट्री का ही बहुत सारा फॉर्मूला यूज किया, तो रिवीजन हो गया एक तरह से। 4 formulas used, 4 formulas used to solve this question. So have a quick look. Distance a common, थोड़ा रीअरेंज करके, उसके बाद ये कंपाउंड एंगल 2 कॉमन, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, और फिर फाइनली मॉड। डिस्टेंस फॉर्मूला इन पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है, सी पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन and you want distance pq, pq चाहिए। If you have 2 1 minus cos theta type, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जिसको हम क्या लिखेंगे, 2 रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ये लर्न करना है। रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ये याद रखना होगा आपको, वो फर्स्ट क्लास में नहीं लेटर का भी एक्सप्लेन होगा, विच विल बी यूज्ड इन अदर चैप्टर ऑल्सो। तो इसके हिसाब से हम इसको 2 मॉड साइन थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट ओनली 2a साइन एल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ज्यादा करेक्ट है, ये भी करेक्ट ही माना जाएगा, इट्स ओके। तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, देन हाउ टू फाइंड डिस्टेंस, रेडीमेड फॉर्मूला इसका ये है, दिस इज द रेडीमेड फॉर्मूला, सिमिलर टू वेक्टर टाइप, सिमिलर टू वेक्टर टाइप, वेक्टर एडिशन में भी सिमिलर फॉर्मूला देखने को मिलेगा। एक्चुअली दिस हैज कम फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट आपको आई एम गिविंग यू एन आइडिया, इट हैज कम फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्रिगो का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर से, वो वाला नॉलेज से ही आएगा, बट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आप सिर्फ फॉर्मूला ओनली रिमेंबर फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला इफ पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन, ये है इसका डेरिवेशन। तो जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड डेरिवेशन लेटर, ये ट्रिगो से आया है, ट्रिगो का प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल चैप्टर से डेरिवेशन आया, तो वो जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा तब ये समझ में आएगा। तो फॉर द टाइमिंग आई हैव गिवन यू आइडिया फ्रॉम वेयर इट हैज कम, अभी इसको अच्छे से लर्न कर लो। तो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो ये थीटा क्या है, रिमेंबर this theta is equal to this theta 2 minus theta 1,
ये जो थीटा है एज यू कैन सी हियर, ये है थीटा, ये थीटा क्या है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट इज टेकन एज थीटा, रिमेंबर दैट। सो पी क्यू का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। cos है तो आप cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि cos ऑफ माइनस एनी वन, एनी। So you can use any one formula, cos theta 1 minus theta 2 minus, because cos है, आप जानते हो cos of minus theta cos theta होता है, any one। तो रिमेंबर ये जो थीटा है, थीटा तो हमारे डायग्राम में थीटा तो है नहीं, थीटा 1 और थीटा 2 है, तो थीटा इज एक्चुअली थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकते हो फ्रॉम द डायग्राम, ये याद रखना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज r1 थीटा 1, दिस इज r2 थीटा 2, जस्ट पुट कर दो, ये देखो cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुआ, तो वैल्यू पुट कर दिया हमने, cos पाई पाई प्लस 0 थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos 0 माइनस 1, cos पाई कितना है -1, सो दिस विल बिकम -1, उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, दैट्स इजी। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पुट कर दो और आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट है, इट इज cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 हियर।